Hi everyone, I hope my audio and video is clear to all of you. I welcome you all to Olive Board and I'm here with the part 2 of this session. I took a session yesterday related to 90 years of RBI wherein we covered the entire history, chronology, key contributions till 1991. Post 1991, we are going to cover the achievements, the chronology, the contributions in today's session. Okay, and I hope it was clear to you yesterday, and I hope you liked the session, and I really hope that it has been fruitful for you, and you are able to understand and have in a sequence everything at one place. Right. So just download that PDF and try to read it again and again so that it will be beneficial for you. Okay, and before I begin, let me tell you where can you download the YouTube class PDFs. You can do it from the Olive Board app. Just go on the Olive Board app. वहाँ पे there's going to be courses section. From this courses section, go to this YouTube class PDFs section, and there you'll be able to download it. अच्छा, there are some videos which are not live. So only live YouTube class videos are available on this app. If you want access to the videos which have already, sometimes we just premiere the videos. For example, this video is going to be premiered. I'm not going to take it live. So you can download these PDFs from the Telegram app, from the Telegram app of Olive Board, from the Telegram app of Olive Board. So you can download it from there. So we usually put that PDF, whichever is not there in the live session, we put that PDF in Telegram app. So if you don't receive certain class PDFs in this YouTube class PDF section, then you can take it from the Telegram app. Apart from that, if you want to connect with me, then you can join my Telegram group as well. The name of the group is Economics with Mannat Educator. Economics with Mannat Educator. Okay, and you can just type Mannat Educator and it will be, you will have access to my group. Okay, fine. So we have covered everything till 1991. So these are the parts that we covered till 1991. We are going to start from 1991 to 2000, then 2000 onwards, and the recent contributions of RBI. Okay, I hope the classes from the topics from yesterday's class are also clear to you. And if you have any doubt, you can obviously ask me in the comment section. Otherwise, this is mostly factual, so it will be easy for you. Not very much to cover in this thing. Fine. So let's not waste time and let's begin with our session. So, we have covered till 1991. Let me just show this to you. This we have covered from 1985 to 1991. We have covered. So now we are going to cover this period from 1991 to 2000. This period. Okay. Here we know that in 1991 we had a huge balance of payment crisis. We already know about this. We also had to resort to loan from the IMF. We had to bring in LPG reforms, which are your structural adjustment programs, SAPs. The structural adjustment programs we had to bring in the form of LPG reforms, which we also called the new economic policy. The new economic policy. Fine. So from on 1st and 3rd July 1991, we had the external payment crisis. Rupee was devalued in two stages. Rupee was devalued in two stages. Cumulative devaluation of about 18%. So around 18% we had devalued our currency. And I've already explained you the meaning of devaluation in the previous slide. Just write in the comment section what is the meaning of devaluation and how is it different from depreciation. Write it down in the comment section and let me know if you know about it. Then November 1991 में Narsimham Committee report was there, which talked about reforms in the Indian banking sector. So this is very important. Narsimham Committee reforms are very important, most important in case of banking sector. I'm sure in your static portion you also cover about these reforms. So in this we had to bring in phased reduction in SLR and CRR, as well as accounting standards, income recognition norms, capital adequacy norms. So here I'm giving you a homework. Read about Narsimham
committee reforms. Narsimham committee reforms, read about it in detail. ठीक है, so here phased reduction in SLR and CRR, because we saw in yesterday's class that CRR and SLR rose to over 53% by the year 1991, and that was too much. That means credit availability, if you know that if you know the CRR or SLR is very high, that means banks have less money to lend. There's going to be a liquidity deficit in the economy in that case. ठीक है, then in March 1992 a dual exchange rate system, which is called the liberalized exchange rate management system, which you call LERMS, this was also introduced. This was an initial step to enable a transition to a market determined exchange rate system. ठीक है, so again second homework, read about this in detail. This is not a static class, that is why I'm not going into the details, so go and read about this. Then in April 1992, income recognition and asset clarification norms were also introduced. Capital adequacy standards were also specified, and these Indian banks had to fulfill these norms by the year 1994 and 1996. SEBI formulated insider trading regulations in 1992, and in 1993 the unified exchange rate system had been started off. Again in 1993 we established private sector banks. Establishment guidelines for establishment of private sector banks were also issued. Why? Because we in 1990s we opened up the economy, we also privatized. So now private sector could come in, private banks could have been established. That is why we brought in guidelines for establishment of private sector banks. So this was to foster greater competition. Then nationalized banks allowed to tap the capital market to strengthen their capital base. So nationalized banks, they were allowed to tap the capital market to strengthen their capital base. Then in 1994 June, National Stock Exchange commenced the operation. So National Stock Exchange started the operations in 1994. Then again in 1994, Committee on Reforms of the Insurance Sector, headed by R.N. Malhotra, was also formed. So for insurance sector, we wanted to bring in reforms headed by R.N. Malhotra. In August 1994, rupee was made convertible on current account. So on current account, rupee was made fully convertible. So what is convertibility of rupee? It basically means how easily you can convert one currency to the other currency, whether it's rupee, US dollar, or any kind of currency. When one currency can be converted into the other currency very easily, that is what is called convertibility of rupee. And in the current account, we made rupee fully convertible. That means now there are no restrictions, regulations have been reduced. Now you can freely convert rupees into dollar for exchange, for import and export of goods. ठीक है? Then October 1994, lending rates of commercial banks were deregulated. So the lending rates of these commercial banks were deregulated. Banks were required to declare their prime lending rates. ठीक है, banks they were required to declare their prime lending rates. ठीक है, deregulated मतलब कि अब ज्यादा रेगुलेशन नहीं रहेगी उनपे. ठीक है, अब बैंक्स अपने हिसाब से भी लेंड कर सकते हैं. That is what this means. Then in Feb 1995, 3rd Feb 1995, Bharatiya Reserve Bank Note Mudra Limited was also established. Bharatiya Reserve Bank Note Mudra was also established. This was a fully owned subsidiary of Reserve Bank, and it commenced printing of notes at Mysore on 1st June and at Salboni on December 11. तो ये एक fully owned subsidiary है of RBI. In June 1995, Office of the Banking Ombudsman established. किस लिए? Expeditious and inexpensive resolution of customer complaints. तो ये ombudsman है, ऑफिस ऑफ बैंकिंग का ओम्बड्समैन इसको एस्टैब्लिश किया था ताकि जो भी कोई कस्टमर कंप्लेंट्स है, कोई रेजोल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा महंगा ना हो और इजीली फटाफट से हो जाए रिलेटेड टू बैंकिंग सर्विसेज. ठीक है, क्लियर है इतना? I hope there's no doubt till here. If there's any doubt, you can obviously ask me in the comment section. ठीक है ना, आपने अपना homework जरूर करना है. Fine. Then in October 1995, banks are allowed to fix their own interest rates on domestic term deposits. तो अगर कोई domestic term deposits है तो banks अब अपने खुद के interest rates को start off कर सकते हैं जिसकी maturity up to 2 years है. 1996 में 17 September 1996 में RBI website was made operational.
ठीक है, तो आरबीआई की वेबसाइट ऑपरेशनल कब हो गई थी? ऑन 17 सितंबर 1996। तो तब से वेबसाइट इज वर्किंग आरबीआई की। आई होप यू विजिटेड द आरबीआई वेबसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द मोबाइल ऐप ऑफ आरबीआई। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है आरबीआई की, दैट इज ऑल्सो वेरी हैंडी। ठीक है, तो चलते फिरते जस्ट गो थ्रू द आरबीआई वेबसाइट और एंड द आरबीआई मोबाइल ऐप। ठीक है, then on 1st April 1997, RBI and Government of India they agreed to replace the system of ad hoc treasury bills with ways and means advances। तो ये ad hoc का क्या मतलब था कि गवर्नमेंट क्या करती थी ना कि जब भी डेफिसिट होता था, जब भी गवर्नमेंट के पास डेफिसिट होता था तो आरबीआई ऑटोमेटिकली इशू कर देती थी एड हॉक ट्रेजरी बिल्स। टेम्पररी ट्रेजरी बिल्स भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये टी बिल्स ऑटोमेटिकली इस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए आरबीआई टेम्पररी ट्रेजरी बिल्स को इश्यू कर देती थी और पैसा इससे कवर हो जाता था। एंड इसकी इस वजह से व्हाट हैपेंड वाज कि जो गवर्नमेंट है, अब उनका तो पैसा अपने आप ही डेफिसिट हो रहा है तो कोई बात नहीं, पैसा तो आ ही जाना है। सो दे बिकेम वेरी लेथार्जिक और वो डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। दैट इज व्हाई हमने इस चीज को स्टॉप कर दिया एंड वी शिफ्टेड टू वेज एंड मींस एडवांसेस। तो ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट जो है उसको हमने खत्म कर दिया। अब वेज एंड मींस एडवांसेस क्या है कि आपको बोरो करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म के लिए फ्रॉम आरबीआई टू कवर योर डेफिसिट। तो वो है ये एडवांस है, ये आप एडवांस ले रहे हैं टू कवर अप योर टू कवर अप दिस थिंग। ठीक है, then in June 1997 RBI conducts first auction of 14-day treasury bills। तो T bills, I hope you know what are T bills। treasury bills हम मनी मार्केट में इशू करते हैं, RBI does it on behalf of the government। treasury bills को इशू करता है। तो वो फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम जो 14-डे ट्रेजरी बिल था वो 1997 जून 1997 में हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, क्लियर है ये? 10 जुलाई 1997 में फिर क्या हुआ, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, they were permitted to invest in dated government securities। तो dated government securities लॉन्ग टर्म जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो they can invest their money in this thing। ठीक है, फिर 20th November 1997 को सीरीज ऑफ मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द एशियन करेंसी क्राइसिस। तो मेजर्स हम लेकर आए थे जो एशियन करेंसी क्राइसिस हो रहा था उसके अगेंस्ट। Then 28th November 1997 में फिक्स्ड रेट रेपोज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड। तो हमने फिक्स्ड रेट रेपोज को हमने इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। ठीक है, ताकि हम लिक्विडिटी को मैनेज इजीली कर सकें, ऑर्डरली कंडीशंस लेकर आ सकें इन मनी एंड फॉरेक्स मार्केट्स। फिक्स्ड रेट मतलब कि इसमें ऑक्शन नहीं होती है, ऑक्शन नहीं होती है इन रेपो रेट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले रेपो रेट्स में ऑक्शन नहीं होती है, फिक्स्ड रहते हैं। Then December 1997 में कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये इन्फ्लेशन हेज थे। आरडी किससे इंक्लूडेड थे? होलसेल प्राइस इंडेक्स से लिंक्ड थे ये कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स। ये इशू हो गए थे, इंट्रोड्यूस हो गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 19 दिसंबर 1997। 1998 अप्रैल 1998 में रिकमेंडेशंस लेकर आए फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ द रोल एंड ऑपरेशंस ऑफ डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उसके लिए हम हार्मोनाइजेशन और ऑपरेशंस के बारे में रिकमेंडेशंस लेकर आए थे ताकि हम यूनिवर्सल बैंकिंग लेकर आ पाए इन इंडिया। यूनिवर्सल बैंक्स जो हम आपने सुना होगा, व्हाट आर यूनिवर्सल बैंक? यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है? जब हम सारे के सारे फंक्शंस को फॉर्म करते हैं, कोई बैंक, एक होता है यूनिवर्सल बैंकिंग, एक होता है डिफरेंशियल बैंकिंग। तो यूनिवर्सल बैंकिंग जो सारे टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, डिफरेंशियल बैंकिंग जो सिर्फ कुछ फंक्शंस को ही परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया में लेकर आना था। ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हम ऑपरेशंस के लिए रिकमेंडेशंस लेकर आए। देन इन 20th अप्रैल 1999 लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो आपके LAF है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। सो LAF इज टाइप ऑफ योर, यू कैन से क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टूल है, आई होप यू नो अबाउट दिस। यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन का भी पार्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट आ जाता है, रिवर्स रेपो रेट आ जाता है। ठीक है, फिर 1999 जुलाई 1999 को इंटरेस्ट रेट स्वैप्स एंड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। डेरिवेटिव मार्केट में हमने इंटरेस्ट रेट स्वैप्स को भी इंट्रोड्यूस किया, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस किया।
नवंबर 1999 में आरबीआई इशूड गाइडलाइंस टू बैंक्स फॉर इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स भी इशू हो सकते थे। 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वाज पास्ड। तो हमने देखा था कल 1973 में फेरा हैड बीन पास्ड। अब फेरा को हमने रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पास किया कब? इन 1999। तो फेरा क्या था? वो रेगुलेशन ज्यादा होती थी, उसमें सेंट्रलाइजेशन ज्यादा थी, बहुत ज्यादा ही रेगुलेट करते थे उसे, फॉरेन एक्सचेंज को। अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में क्या है? अब हम रेगुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ मैनेज करेंगे, इंटरवीन करेंगे, मैनेज करेंगे, बहुत ज्यादा इंटरवीन नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हमारी रेगुलेशन, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन नहीं रहेगी। फॉरेन एक्सचेंज को हम सिर्फ मैनेज करेंगे, जब जरूरत पड़ी तब इंटरवीन करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। देन 2000 में अगर हम बात करें, नाउ दिस इज 2000 ऑनवर्ड्स, तो वो तो था, हमने देख लिया 1991 टू 2000। 2000 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, देन जून 2000 में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। 2001 में किसान क्रेडिट कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अप्रैल 2001 में बैंक्स वर अलाउड टू फॉर्मुलेट स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बैंक्स फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स को, जो एफडी स्कीम्स है, उसको भी स्टार्ट ऑफ कर सकते थे, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता था। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए आप फॉर्मुलेट कर सकते थे। ठीक है। फिर 2001, 30 अप्रैल 2001 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैड आल्सो बीन एस्टैब्लिश्ड। तो हमने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया टू ताकि हम जो क्लियरिंग है, क्लियरिंग ऑफ बिल्स है, क्लियरिंग ऑफ मनी है, ठीक है, जो क्लियरिंग फंक्शन होता है बैंक्स का, वो इजीली परफॉर्म हो सके, स्ट्रीमलाइन हो सके। ठीक है, जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम होता है। Then in June 2001, RBI issues guidelines for internet banking. तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक न्यू एरा ऑफ बैंकिंग स्टार्ट हुई फ्रॉम 2001। तो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड जून 2001 में आरबीआई हैड इशूड गाइडलाइंस। फिर नवंबर 2001 में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैड ऑक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड यानी कि जब जो जो चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है, जो वो ऑक्शन हुए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। 2002, 1 Jan 2002 में आरबीआई हैड कमेंस्ड द रेफरेंस रेट ऑफ यूरो, जिसने रिप्लेस कर दिया। अब पहले क्या था, जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म हो गई थी, तो उन्होंने एक ही करेंसी को यूज करना शुरू कर दिया, विच इज यूरो। उससे पहले अलग अलग करेंसीज थी, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, पोर्चुगल, स्पेन, नेदरलैंड्स। तो इन सबकी अलग अलग करेंसीज थी, उसको हमने हटा के एक रेफरेंस रेट बना दिया यूरो के लिए। ठीक है। फिर जून 2002 में जो सरफेसी एक्ट है आपका, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑर्डिनेंस। तो ये किस लिए था? एसेट रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो एनपीएस वगैरह है उनको कैसे हम खत्म कर सके, या फिर उसको वापस से हम एसेट को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करें, एनपीएस वगैरह के लिए हमारे पास ये एक्ट था। ठीक है। फिर 2002 में सितंबर 2002 में ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो बैंक स्कीम्स ओपन कर सकते थे ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स के लिए, जो फॉरेन बैंकिंग यूनिट्स हैं उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में स्कीम्स ओपन कर सकते थे बैंक्स। इससे क्या है, फॉरेन ब्रांचेस है इंडियन बैंक्स के, बट लोकेटेड इन इंडिया। तो यहाँ पे जो फॉरेन बैंक ब्रांचेस है इंडियन बैंक्स की, वो लोकेटेड है इंडिया में ही, उसकी बात की है यहाँ। ठीक है, ये होंगे वो यूनिट्स जो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स होंगे। देन इन जैन 2003 स्टॉक एक्सचेंजेस, जो कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस थे जिन्होंने अपनी रिटेल्स ट्रेडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में शुरू कर दी थी, अलाउ कर दिया था उनको। अप्रैल 2003 में रिस्क बेस्ड सुपरविजन ऑफ बैंक्स, यानी कि बैंक्स का जो सुपरविजन होगा रिस्क के बेसिस पे होगा, उसकी बात की हमने अप्रैल 2003 में। ठीक है। फिर जून 2003 में एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के लिए भी गाइडलाइंस इशू किया गया था। एंड 2003 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया फॉरेक्स क्लियरिंग सिस्टम, एफएक्स क्लियर। फॉरेक्स क्लियर सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज के लिए अलग से क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम लेकर आए, कौन? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई। ठीक है, फाइन। सो दिस वाज 2000 ऑनवर्ड्स। अगर हम रीसेंट कंट्रीब्यूशंस की बात करें, सो वी हैव दिस थ्रेड्स प्लेटफॉर्म। ये क्या है? एमएसएमईज के लिए है। दिस इज फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये माइक्रो
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई ने लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया? डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, फाइनेंसिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ एमएसएमईज। अब हमने कल ही ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसकी बात की थी। आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज है, दो बिजनेसेस है, ए एंड बी। ए ने बी से कुछ सामान खरीदा, लेकिन उसे बोला कि मैं तुझे थोड़े टाइम बाद लिख के दे दिया, लिख के दे दिया कि मैं तुझे थोड़ी देर बाद पैसे दूंगा। एंड बी ने उसको लेकिन अभी सामान तो प्रोवाइड कर दिया। अब इसके पास, बी के पास ये ट्रेड रिसीवेबल है जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। उसी उसी तरह से होता है ट्रेड रिसीवेबल भी। तो ये आप बैंक के पास जा सकते हैं और बैंक को बोल सकते हैं मुझे इमीडिएट कैश की जरूरत है, आप ये रिसीवेबल रखो एंड मुझे पैसा दे दो। तो वो डिस्काउंटेड पैसा आपको वापस मिलता है। जैसे अगर 10,000 का है ये, तो आपको 9,000 मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा बैंक भी इमीडिएटली लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए कम रेट पे प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो स्पेसिफिकली एमएसएमईज के जो बिल्स हैं उनको डिस्काउंट करने के लिए या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स को डिस्काउंट करने के लिए वी हैव दिस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है। ये रिसीवेबल्स कैन बी ड्यू फ्रॉम कॉर्पोरेट्स और एनी अदर बायर्स। जो कोई भी बायर है, कॉर्पोरेट्स है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये इसका पर्पस क्या था? टू अलाउ एमएसएमई सेलर्स टू डिस्काउंट इनवॉइसेस, ठीक है, व्हिच हेल्प्स देम मैनेज देयर वर्किंग कैपिटल, ताकि उनका जो पैसा है उसमें ज्यादा इशू ना रहे, वर्किंग कैपिटल डिमांड उनकी पूरी हो जाए, एमएसएमईज रिसीव कर सकते हैं पेमेंट्स क्विकली, उसके लिए है। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली। ठीक है। ओके, आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर। कुछ नहीं है, बहुत इजी है, डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें हैं, बस ये आपको चीजें कुछ याद रखनी है, राइट। देन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो हम यूपीआई लेकर आए, ये डिजिटल पेमेंट्स डिजिटाइज किया हमने, पेमेंट्स को, यूपीआई को हमने स्टार्ट किया। ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? मल्टीपल बैंक अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड इन अ सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, है ना। पीयर टू पीयर हम रिक्वेस्ट, जो आपकी पेमेंट्स है वो ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आपके पास होती है, उस यूपीआई आईडी से आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट कर सकते हैं जब भी आप कन्वीनियंट हो। ठीक है। सो एनपीसीआई ने कंडक्ट किया था पायलट लॉन्च विद 21 मेंबर बैंक्स। दिस इज ऑन 11 अप्रैल 2016 बाय डॉक्टर रघुराम राजन, जो गवर्नर थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था पायलट बेसिस पे, एंड बाद में इसको फिर हमने ओवरऑल लॉन्च कर दिया था। ठीक है। अब यूपीआई तो अब हम देख सकते हैं यूपीआई का तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम राइट नाउ, राइट। देन 2016 में वी आल्सो स्टडी अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब देखिए 2016 से पहले क्या रहता था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो डिसीजंस रहते थे, मान लीजिए इन्फ्लेशन को टारगेट कितना रखना है, कोई भी डिसीजन था मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद द आरबीआई गवर्नर। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी? आरबीआई गवर्नर के पास। पर आफ्टर 2016 हम एक फाइनेंस एक्ट लेकर आया 2016, जिसने अमेंड किया आपके आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 को, और उसमें कहा कि अब से देयर इज गोइंग टू बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 लोग बैठेंगे, देयर आर गोइंग टू बी 6 मेंबर्स, और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई गवर्नर की नहीं होगी, इस कमिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो कोई भी रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन है, दैट दिस 6 मेंबर कमिटी इज गोइंग टू टेक दैट डिसीजन। ठीक है। एंड दिस इज गोइंग टू बी बाइंडिंग ऑल्सो। एंड यहीं पे हमने एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क भी लेकर आए, जिसमें हमने डिसाइड किया कि जो आपका इन्फ्लेशन है उसका टारगेट रहेगा 4% विद रेंज ऑफ प्लस माइनस 2%। ठीक है। तो ये रहेगा रेंज। ठीक है। फाइन। सो फाइनेंस एक्ट ऑफ 2016 को अमेंड किया था आरबीआई एक्ट को, और एमपीसी हमने कॉन्स्टिट्यूट की। तो इसमें हमने इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर दिया। ठीक है। इंटरेस्ट रेट को हमने सॉरी हाँ, सो दिस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इट हैज टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। इसके 6 मेंबर्स रहते हैं, एंड जो गवर्नर है आरबीआई का, दैट इज द चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी। ओके।
और हमने आपको ऑलरेडी टोल्ड यू कि टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2% है, लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा इन्फ्लेशन का 4%. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क. तो हमें टारगेट करना है कि हमारी आइडियल इन्फ्लेशन रहेगी अराउंड 4%. ±2% से हम इसे आगे पीछे कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स. देन 2016 में अगेन वी ब्रॉट इन डीमोनेटाइजेशन. हमने 500 और 1000 रुपीज नोट्स का डीमोनेटाइजेशन किया था ऑन नवंबर 8 2016, ताकि हम ब्लैक मनी और काउंटरफीट करेंसी को कर्ब कर सकें. देन वी स्टार्टेड इन 2019 भारत बिल पेमेंट सिस्टम को हमने लॉन्च किया था. दिस वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. दिस इज एन इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम जो क्या ऑफर करता है, इंटर ऑपरेबल एंड एक्सेसिबल बिल पेमेंट सर्विसेज. ठीक है, तो बिल पेमेंट सर्विसेज को बहुत एक्सेसिबल बना दिया था थ्रू दिस भारत बिल पेमेंट सिस्टम. ऑनलाइन के थ्रू आप सेटल कर सकते हैं. देन हमने आधार बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी प्रोसेस को भी एनेबल किया था, ताकि हम ऑथेंटिकेट कर सकें जो भी कस्टमर्स है उनके आइडेंटिटीज को हम ऑथेंटिकेट कर सकें. फॉर दैट वी हैव दिस आधार बेस्ड ई केवाईसी. ठीक है, फिर हमने डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के ऊपर हमने ओवरसी करना शुरू किया. जो ये नीश बैंक्स होते हैं that typically target a specific market. ये नीश बैंक्स या फिर जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स है, ये क्या करते हैं, सिर्फ एक या दो चीजों को टारगेट करते हैं. मतलब ये बैंक के सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म करते, कुछ फंक्शंस ही परफॉर्म करते हैं. जैसे हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गया, है ना, लोकल एरिया बैंक्स हो गए. ठीक है, ठीक है, ये स्पेसिफिक मार्केट को ही करते हैं, इनके बैंक ऑपरेशंस भी स्पेसिफिक रहते हैं. तो हमने ये डिफरेंशिएट बैंक्स है, ये सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ऑफर नहीं करते, ये बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमने इनको ओवरसी करना शुरू किया. फिर हमने दिस ईसीएलजी जो स्कीम है उसको लेकर आए थे, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2020 में ये लेकर आए थे, ताकि हम इमीडिएट क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके फॉर दोज हु आर अफेक्टेड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक. जो एमएसएमईज, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अफेक्टेड थे थ्रू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, उनको हम इमरजेंसी क्रेडिट प्रोवाइड कर सके, असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके. Then you have this account aggregator in 2021. अब ये फ्रेमवर्क क्या है, ये कस्टमर्स दे कैन मैनेज देयर ओन फाइनेंशियल डेटा. ठीक है, वो जो भी उनके फाइनेंशियल एंटिटीज के साथ अलग अलग उनका फाइनेंशियल डेटा है उसको वो खुद मैनेज कर सकते हैं इन अ सिक्योर एंड सीमलेस मैनर. ठीक है, तो वो खुद अपने फाइनेंशियल डेटा को मैनेज कर सकते हैं. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी रहती है, उसी बेस पे हमारे पास ये है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. ये इंडिया की डिजिटल रुपी है. सो दिस इज अ लीगल टेंडर. ये एक लीगल टेंडर है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट है. हमने आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया ये डिजिटल रुपी इन बोथ होलसेल एंड रिटेल फॉर्म्स, ताकि हम टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव कर सके, क्राइम रेट्स को कर्ब कर सकें. तो डिजिटल रुपी क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है हमारी करेंसी का, एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है, ताकि हम अपने जो वैल्यू है मनी की, रुपी की, उसको हम स्टोर कर सके डिजिटली. जैसे करेंसी फिजिकल फॉर्म में है, बस उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास ई रुपी है. ठीक है, सो दीज वर द कंट्रीब्यूशन, सीबीडीसी, अकाउंट एग्रीगेटर, ईसीएलजी, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग, आधार बेस्ड ई केवाईसी, डीमोनेटाइजेशन, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एमपीसी, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, यूपीआई, ट्रेड्स. ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. And I have this question for you. This is the model question based on this. Examine the achievements and obstacles encountered by Reserve Bank of India. Propose reforms to unleash the full potential of RBI as a driving force for the vision of Viksit Bharat. यहाँ मैं आपके लिए एक descriptive question लेकर आई हूँ. You can write this answer, and if you want me to evaluate your answer, you can join my Telegram group. आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. द नेम ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप इज इकोनॉमिक्स विद मन्नत, इकोनॉमिक्स विद मन्नत एजुकेटर. ठीक है, यू जस्ट हैव टू टाइप मन्नत एजुकेटर. आप बस टेलीग्राम में जाएं, वहां पे मन्नत एजुकेटर लिखें, मन्नत एजुकेटर लिखें, एंड वहां पे यू कैन ज्वाइन माय चैनल. आप इस आंसर को लिख सकते हैं एंड मुझसे इवैल्यूएट करवा सकते हैं. ठीक है, सो आपने क्या लिखना है, इसमें कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं, आपने अचीवमेंट्स लिखनी है, ऑब्स्टिकल्स लिखने हैं जो आरबीआई हैज एनकाउंटर्ड, और कुछ रिफॉर्म्स, आपने कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं ताकि आरबीआई
अपने पोटेंशियल को एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर विजन ऑफ विकसित भारत, हमें डेवलप बनना है बाय द ईयर 2047, तो आप कुछ रिफॉर्म्स भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मॉडल क्वेश्चन है, आपको आ सकता है बिकॉज 90 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं आरबीआई के, so there is likely that you are going to get a question related to this. Okay, so that's it from my side, and I also want to make an announcement कि हमने batch 5 launch कर दिया है for RBI Grade B course. The classes are ongoing, so if you want to fast track your preparation, आप ले सकते हैं for both phase 1 and phase 2. Live classes रहेंगी, detailed study notes आपको provide होंगे, descriptive writing classes आपको मिलेंगी, mock tests मिलेंगे आपको for both phase 1 and phase 2. So you will have 95 plus live classes. In fact हम अलग से MCQs भी करवाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज हम करवाएंगे आपको, हर एक टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विल बी डन, करंट बेस्ड राइटिंग भी रहेगा, स्टैटिक बेस्ड आंसर राइटिंग भी रहेगा। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी एन दैट्स एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड. This is what I wanted to discuss with you. I hope you liked the session. कुछ भी डाउट है you can ask me in the comment section, या फिर you can follow my telegram group just like I have told you. ठीक है, so thank you so much, take care and have a nice day. See you in my next lecture. Bye bye.